ہم نے اس سال بہت افیکٹو کارروائیاں کی ہیں ہیومن سمگلرز کے خلاف. بہت سارے سینکڑوں لوگوں کو پکڑا. ریڈ بک والے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کشتی حادثات میں لوگوں کو 40 سال سزائیں بھی ہوئی ہیں. کون سے ایسے کنٹریز ہیں جو ہیومن سمگلر فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں اسی ہیومن سمگلنگ کے لیے؟ مکمل تسلی کرنے کے بعد کہ ان کے ڈاکومنٹس میں پرابلم تھے یا یہ بالکل ایک آپ کہیں کہ ہمیں ثبوت مل گیا کہ یہ بندہ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے، اپنے ملک کی بدنامی بچانے کے لیے یہ ایک چیز ہوئی. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس ساری جو ابھی کیمپین چل رہی ہے اس کے پیچھے کیا وہی ایجنٹس اور وہی عناصر تو نہیں جو اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت ساری اے آئی پکچرز کا بھی استعمال ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے عناصر بھی ہیں جن کو شاید یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی کہ اگر ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے کاروبار کو روکنے کے لیے ایف آئی اے کوششیں کر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں زاہد اقبال رانا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے گجرانوالہ زون کی جانب سے ریجن بھر کے تمام اضلاع سے انسانی سمگلنگ اور اس میں ملوث جو افراد ہیں ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے. تو ابھی تک کی کارروائیوں میں سینکڑوں کی تعداد میں انسانی سمگلنگ میں ملوث جو انسانی سمگلرز ہیں نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا بلکہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر عرصہ دراز سے روپوش ریڈ بک کے انتہائی مطلوب جو اشتہاری ملزمان تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور کشتی حادثات میں ملوث جو افراد ہیں ان کو فاضل عدالتوں کی جانب سے سزائیں بھی کروائی جا چکی ہیں. اور ابھی اس دوران جو ہے ان کریک ڈاؤن کے دوران ہی جو ہے وہ ایک شور سنائی دیتا ہے کہ ایف آئی اے اور ایف آئی اے امیگریشن کی جانب سے گجرانوالہ اور پاکستان بھر کے ایئرپورٹس پر جو ہے وہ جانے والے مسافروں کو زبردستی جو ہے وہ آف لوڈ کیا جا رہا ہے. تو اس باتوں میں کتنی صداقت ہے یہ جاننے کے لیے ابھی ہم اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے گجرانوالہ زون کے آفس میں، اور ڈائریکٹر ایف آئی اے گجرانوالہ زون میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ یہ باتیں بڑی زور و شور سے چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں وہ شکایات بھی کر رہے ہیں کہ جانے والے لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ آف لوڈ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا صداقت ہے اور عام شہریوں کو آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. اچھا، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ ہم نے اس سال بہت افیکٹو کارروائیاں کی ہیں ہیومن سمگلرز کے خلاف. تو جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں دو قسم کا سٹیپس ہوتے ہیں. ایک تو پری ایمپٹیو اور ایک پوسٹ انسیڈنٹ انویسٹیگیشن. پوسٹ انسیڈنٹ کا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ بہت سارے سینکڑوں لوگوں کو پکڑا. ریڈ بک والے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کشتی حادثات میں لوگوں کو 40 سال سزائیں بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے ہیڈ کوارٹر کی سطح پر پورے ملک میں ایک نیا جو ہے رسک انالیسس یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ بیسیکلی پری ایمپٹیو ہے کہ ہم حادثہ ہونے کے بعد فائر فائٹنگ نہ کریں بلکہ اس کو پہلے سے روکنے کی بھی پیش بندی کریں. اس سلسلے میں ہم نے جو پچھلے کشتی حادثات ہوئے ان سب کا ڈیٹا مرتب کر کے اور ایک چیز نکالی کہ کون سے ایسے کنٹریز ہیں جو ہیومن سمگلر فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں اسی ہیومن سمگلنگ کے لیے، اور اس میں کون سے ایج گروپس ہیں اور اس میں اور کون سے فیکٹرز ہیں، کس قسم کی ویزا ٹائپس ہیں، کس قسم کی چیزیں ہیں جو بعد میں لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اور یہ ہیومن سمگلر جو ہے نا ان کو ان کی بھی جانوں کا نقصان ہوتا ہے اور ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے. اس کی بیسس پہ ایک بہت ہی لمیٹڈ نمبر کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا کہ لیس دین 1% جو ہیں ٹریولرز ان کو اس کی بیسس پہ آف لوڈ کیا گیا، لیکن مکمل تسلی کرنے کے بعد کہ ان کے ڈاکومنٹس میں پرابلم تھے یا یہ بالکل ایک آپ کہیں کہ ہمیں ثبوت مل گیا کہ یہ بندہ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے، اپنے ملک کی بدنامی بچانے کے لیے یہ ایک چیز ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ اس کا ایک ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ اس سال بھی کشتی حادثات ہوتے رہے لیکن ابھی تک الحمدللہ کوئی پاکستانی اس میں بڑی تعداد میں نہیں تھے جس طرح ہم نے دیکھا پہلے ہوتا رہا. اور اسی طرح جو ہمارے ڈیپورٹیز ہیں، جو باہر سے لوگ ڈیپورٹ ہو کر آتے ہیں کہ انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس پہ ٹریول کیا یا یہ کرنا چاہتے تھے اور پکڑے گئے، وہ بھی 50% سے زیادہ کم ہوئے. لہٰذا یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ ہم ون سٹیپ اہیڈ جا کر ایک پریونٹیو رجیم
पूरे एफआईए में हमने एक नाफिज की और उस सिलसिले की ये एक कड़ी है। अच्छा, ऑफलोड करने वाले लोगों के बारे में आप प्रेस रिलीज भी जारी करती हैं। जिन लोगों को ऑफलोड किया गया, जिनके सबूत आपको सामने मिल गए, उनके खिलाफ या उनको पीछे से भेजने वाले जो एजेंट हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, ऐसी दर्जनों हमारे पास इंक्वायरीज और केसेस रजिस्टर्ड हैं। एक तो बात यह है कि जो ये मासूम लोग जो इनके जाल में आते हैं, उन्हें हम एज अ विक्टिम ही ट्रीट करते हैं, अनलेस के वो जो उसमें से एक कैटेगरी ऐसी है जो जानते बूझते जाली डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो लोग हैं उन सब की इंक्वायरीज और केसेस मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं। बहुत से लोगों को जेल भी हुई, बहुत से एजेंट्स भी पकड़े गए, और हमें ये देखना होगा कि कहीं इस सारी जो अभी कैंपेन चल रही है उसके पीछे क्या वही एजेंट्स और वही अनासिर तो नहीं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारी एआई पिक्चर्स का भी इस्तेमाल हुआ, और इसका मतलब ये है कि कोई ऐसे अनासिर भी हैं जिनको शायद ये चीज अच्छी नहीं लग रही कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने कारोबार को रोकने के लिए एफआईए कोशिशें कर रही है, तो मेरा ख्याल है ये उसको मजमूम बनाने का भी एक जो है ना वो जरिया बन गई है ये कैंपेन। अच्छा, आप ये जानते हैं गुजरांवाला रीजन में आफ्टर ऑल ज्यादा जो केसेस हैं वो यहाँ से रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पर जो है वो इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। ये ऑफलोड इशू के साथ साथ जो उम्रे पे जाने वाले लोग हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, वो भी एक पूरे मुल्क का भी एक इशू। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब में जो लोग जाकर भीख मांगते हैं, क्या वो उम्रे के वीजे पे नहीं जाते? तो और मुल्क उधर से बकायदा हमें ऑफिशियली आपको पता है कन्वे हुआ कि ये फिर वो बैन किए जाते हैं उधर और से। बैन किए जाते हैं, मुल्क की बदनामी होती है। आप देखें कि और एक आध और कंट्री में वीजास का हमारा पाबंदी लगी। तो ये सब चीजें जेन्युइन कोई उम्रे के मुकद्दस फरीजे के लिए जा रहा है, हम उसे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जेन्युइन कोई अपने किसी भी मकसद के लिए, स्टडी के लिए, अपने विजिट के लिए, कारोबार के लिए कोई भी नहीं रोकेगा, बल्कि हम फैसिलिटेट करेंगे। और ये लोग जो बाहर जाते हैं बिल्कुल हमारा इमेज भी है और हमें एक कीमती ज़र मुबादला भी भेजते हैं। ये सिर्फ प्रोफाइलिंग करने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद, जिसके बारे में हमें यकीन हो कि ये इलीगल सरगर्मी, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, चाहे कोई जुर्म हो, चाहे भीख मांगना हो या कोई और ऐसी चीज हो, उसमें ये इन्वॉल्व होने का हमें कोई उस पे इम्कान जाहिर हो जाए तो फिर ही हम उनको ऑफलोड करते हैं। अच्छा, अभी तो वो एयरपोर्ट पर जदीद जो मशीन्स हैं वो भी नस्ब कर दी गई हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और फौरी आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सी कमियां हैं, खुताइयां हैं या अनलीगली तरीका है। वो जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, वो हमने एक आपको पता है आईसीएमपीडी के ताउन से एक पूरा उधर हमने एक सिस्टम लगाया है जिसमें अब फेक डॉक्यूमेंट्स या कोई भी जाली तरीके से हासिल की गई दस्तावेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फौरी तौर पर चेक हो जाती है। वो अब बहुत उसका इस्तेमाल कम रह गया है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स पे जाए। लेकिन उसके साथ साथ असल जो चैलेंज है वो दूसरी कैटेगरी है जिसमें डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल हैं लेकिन वो किसी ऐसे पर्पस के लिए जा रहा है जो उस डॉक्यूमेंट्स में उसने वाजे नहीं किया। आप ये देखें कि डॉक्यूमेंट्स तो जापान जो है फुटबॉलरों वो टीम भी चली गई है, तो वो भी चली गई और वापस आई, उनके भी डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल थे, लेकिन कभी उन्होंने गली मोहल्ले से बाहर जो है ना फुटबॉल नहीं खेली, यही नहीं पता कि फुटबॉल होती है। खास बात है कि 2 दफा वो टीम गई है। जी एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो एक्शन हुआ, जो एजेंट था पकड़ा गया, वो सारी चीजें हुई। तो इसका अब इस यहां समझने की चीज की ये जरूरत है कि ह्यूमन स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार है। अब जिस तरह से हम अपने तरीके बदलेंगे, उनकी जो भी चीजों को पकड़ेंगे, तो वो भी जाहिर है हमसे कोशिश करेंगे कि ज्यादा स्मार्ट तरीकों से निकलें और लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अभी तक आपने उनके जो इंटरनेशनल 3 रूट्स थे उनकी आपने कमर तोड़ के रख दी है। जिस जिस रूट पे वो लोगों को लेके जाते थे आपने क्रैकडाउन किए, पकड़े, गिरफ्तार किए, सजाएं दिलाई। ये मौके के साथ साथ वो भी तब्दीली करते रहते हैं। यही बात है, वो मौके के साथ साथ तब्दीली करते हैं, वो एआई का यूज करते हैं, वो भी अपनी पूरी रिसर्च करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो हम जो भी स्टेप लें उसको बाईपास कर सकें। उसी वजह से आप देखें कि ये भी मतलब हमें देखना पड़ेगा कि क्या उन्हीं का स्टेप तो नहीं कि एफआईए को इतना अंडर प्रेशर कर दिया जाए कि फिर किसी को कोई देखें। आप खुद बताएं, हमारे लिए तो ये बहुत आसान है कि हम किसी को भी ना रोकें और जाने दें,
ये तो बहुत आसान चीज है। लेकिन जब कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है या कोई इतना बड़ा इशू बनता है तो वो लोग फिर हमारे पास आते हैं और हमें मोरद इल्जाम ठहराते हैं कि हमारे बच्चों की जानें बचाने के लिए आपने क्यों ना कोई कदम उठाया। तो ये उसी सिलसिले में ये सारी एफर्ट्स हैं। अच्छा, गुजरांवाला में लोग लाखों और करोड़ों रुपए देके गैर कानूनी रास्तों के जरिए सुहाने आंखों में सपने लिए यूरोप का रुख करते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं। आप उन शहरियों को क्या पैगाम देंगे जो कि अपने बच्चों को खुद मौत की राह में डालते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें, हम तो बार बार सेमिनार्स भी कर रहे हैं। आपको पता है हुकूमती सतह पे भी बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि खुदारा इन ह्यूमन स्मगलर से, इन ट्रैफिकर से बचें। लेकिन ये आपकी बात जरूर ठीक है कि क्योंकि एक सोशल एक इशू है, शायद लोगों को ये नजर आता है कि जिस भी तरीके से वहां पहुंच जाएं तो उसके बाद जो है वो जिंदगी बहुत बदल जाएगी। और उसमें भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना। आप देखें कि लोग पिछले बहुत से सालों में, जब तक ये लैंड रूट चलता था, अब मैं आपको समझाऊं कि लैंड रूट जब ईरान टर्की से लोग जाते थे तो बहुत कम पैसों में हजारों लोग गए भी हैं, ये एक बात फैक्ट है। और फिर उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बदली भी है। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें तो जाहिर है जो चीज नजर आती है वो वही है, जो उनके बड़े बड़े घर हैं, जो उनका लाइफ स्टैंडर्ड है। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। अब आप देखें कि जैसे जैसे मुख्तलिफ मुल्कों में इन चीजों के खिलाफ सख्ती हुई है और इलीगल माइग्रेशन एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन गया है, अब ह्यूमन स्मगलर्स ने तो अपना वतीरा नहीं छोड़ा। उन्होंने जो जरिए अपनाए हैं वो इतने ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं कि उसमें आपके बच्चों की जो जान है, माल, आप देखें कि कितने सारे लोग हैं जिनको उधर सेफ हाउसेस में रख के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बाद में वीडियोस भेजी जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, डिमांड की जाती है, फिर वो मूवी को आगे से आगे बेच दिया जाता है। और उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जब वो अपने बच्चे की वीडियो तशद्दुद ज़दा देखते होंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उनसे ये इल्तमास है कि देखें, आप मेहनत करके जायज तरीके से कोशिश करें और इधर ही अपने लिए वसाइल पैदा करें। इलीगल तरीके से, हाँ, आप लीगल माइग्रेशन जरूर करें और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। लीगल माइग्रेशन के थ्रू आप कोई स्किल हासिल करें, आप एक स्किल्ड वर्कर के तौर पे जाएं और बिल्कुल मुल्क का नाम भी रोशन करें, अपनी भी इकोनॉमिक हालत बेहतर बनाएं और बिल्कुल आपको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि जैसे कि लोग जिस तरह निकलते हैं घरों से अच्छे मुस्तकबल की तलाश के लिए, लोगों को क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए कि इंसानी स्मगलिंग से वो बच सके? देखें, आजकल जितना अवेयरनेस का दौर है, मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ी सी भी एहतियात बरत लें तो सर्च कर लें तो ये पॉसिबल नहीं कि वो आपको, जब आपको एक बंदा पहले बताई इस तरह रहा है कि मैं आपको पहले एक मुल्क लेके जाऊंगा, वहां से कैटेगरी चेंज करूंगा, वहां से दूसरे मुल्क लेके जाऊंगा, और बहुत सारे तो डायरेक्ट अफ्रीका का बता भी देते हैं कि कश्ती पे लेके जाऊंगा। तो जानते बूझते जो है वो ये जहर निकलने की मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक गलत चीज है। और इसमें अब माँ बाप को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली डिसीजन तो शायद वो ले रहे होते हैं। हमारा जिस तरह की सोसाइटी है, जो पैसे का रेंज है, अब आपको पता है कि कितना महंगा अब ये हो गया। किसी दौर में शायद 2-4 लाख में लोग चले जाते थे, अब तो 50 लाख जो है वो प्लस हो चुका है और एवरेज है और डेंजरस अलहदा से है। तो इतने पैसों में क्यों नहीं कोशिश करते कि इधर हलाल तरीके से कोई अपना छोटा कारोबार कर लें, कोई अपना फॉर्म खोल लें, कोई कुछ भी इसमें पॉसिबल है कि चीज मेहनत से की जाए तो उनको मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक एक सर्टेनिटी भी होगी। और ये जो बाद में मैंने वो चेहरे देखे हैं, वो माएँ देखी हैं जो आके रोती हैं कि बच्चा 10 साल हो गए और पता भी नहीं है कि समुंदर में बह गया या किसी जिंदा खाने में है या कहाँ है। तो इन सूरत हाल से खुदारा बचें और ये वो पुराने वक्त नहीं है। अपने और अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें और गैर कानूनी स्मगलिंग के धंधे से अपने और अपने प्यारों की जान बचाएं। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये है डायरेक्टर FIA गुजरांवाला जोन, जिनकी आपने बातें सुनी। इनका कहना था कि सिर्फ एयरपोर्ट्स पर उन जो मुसाफिर हैं उनको ऑफलोड किया जा रहा है जिनके कागजात
या वो दौराने तहकीकात मुस्बत जवाबात नहीं दे पा रहे, तो सिर्फ उन लोगों को जो है वो ऑफलोड किया जा रहा है। तो दूसरी जानब गुजरांवाला रीजन में जो है वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो ग्रोह हैं उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन का जो सिलसिला है वो जारी है। तो अभी तक की कार्रवाइयों में सैकड़ों जो अफराद है जो कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो FIA गुजरांवाला जोन की जानब से रीजन गुजरांवाला के शहरियों से ये अपील की जा रही है कि खुदारा जब भी इसी तरह का किसी एजेंट से आप मिले तो पहले उसकी मुकम्मल तहकीकात कर ली जाए कि कहीं वो आपके प्यारे को गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपए के एवज तो नहीं भेज रहा। तो तमाम तर सूरत हाल में जो है वो FIA गुजरांवाला जोन की जानब से रीजन भर के तमाम अजला में जो है वो सेमिनार करवाए जा रहे हैं, अवेयरनेस जो है वो शहरियों को फराहम की जा रही है। तो FIA गुजरांवाला जोन की जानब से जो है वो रीजन भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। तो डायरेक्टर FIA जोन गुजरांवाला का कहना है कि रीजन भर के तमाम अजला से इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और इसमें मुलव्वस जो अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी तक ये जो क्रैकडाउन का सिलसिला है ये इसी तरह ही जारी रहेगा।